So now in next we gonna study about the properties of gases, liquid and solids. First of all, we will talk about gases. If we have in this container we gas one and the gas two, yes or no? And this is the partition. This is the partition where gas one is separated from gas two. If we, for example, this is N2 gas, this is O2 gas, or any other gases, मतलब gas one, gas two. If we remove this barrier, then what will happen? All these gases are, as the gases have least or negligible intermolecular IMF, intermolecular force of attraction, means it is the force of attraction between the particles, yes or no? Then what will happen? The particles of this side will intermix to each other, yes or no? Truly, it will mix up throughout the container, throughout the vessels. This is the property of gases. As we keep gas in any container, it will occupy the whole container, as it do not have fixed shape, not fixed volume. But in case of solid, it is solid volume, solid shape. Clear? But in case of liquid, it has fixed volume but not fixed shape, as their shape can be changed. Yes or no? Are you getting my point? Yes, sir. तो इस तरीके से गैस की क्या होगा, इंटरमिक्सिंग हो सकता है. सो अगर हम लोग बात करें, जैसे आपने कभी देखा होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज द बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, एंड व्हाइट बोर्ड we write on it with chalk, yes or no? Whiteboard or not whiteboard, it is the blackboard, yes or no? In blackboard we write with the help of chalk. If we do not rub instantly, then what will happen? After few days, you will, when you erase the whatever you have written, then there will be some writing portion of the chalks, yes or no? It means that the solid particles also diffuses to the solid, means solid can also diffuse to the solid, and liquid all can also diffuse to the solid. Gas can also diffuse to the, means गैस कैन डिफ्यूज. डिफ्यूज मीन्स क्या होता है कि एक मीडियम से एक एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ दोनों का ट्रांसफर होना, दैट इज द क्या, diffusion. Yes or no? The movement of particle from one surface across the membrane to the next, that we call as what? Diffusion. Yes or no? It is clear for now? Yes, sir. Yes or no? So if we want to increase the rate of diffusion, then we should have to increase the temperature. If we increase temperature, means what will happen? The kinetic energy will be increased. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब क्या, कि पार्टिकल्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाएगा. सर, तो अगर कोई चीज गर्म है तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है क्या? ऑब्वियसली ज्यादा होता है. अच्छा, ऑब्वियसली ज्यादा होता है. लेकिन हम लोग अगर कंडक्टिविटी की बात करें, जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं, जो मेटल्स होते हैं ना, जो ऑलरेडी कंडक्टर हैं, देखो आपके पास जो हम लोग सब्सटेंस ही ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी अलग अलग टाइप का होता है. कुछ कुछ कंडक्टर होता है, कुछ बैड कंडक्टर होता है, कुछ सेमी कंडक्टर होता है. तो अगर कंडक्टर पे ऑलरेडी आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो उसमें होगा क्या ना, कि जो कोलिजन होगा ना आपस के बीच के पार्टिकल्स की, वो ज्यादा हो जाएगा. मीन्स कोलिजन ज्यादा होगा, तो आपस में दे विल कोलाइड ईच अदर, यस और नो, जिनकी वजह से उनका नेट मूवमेंट कब हो जाएगा, तो उसकी कंडक्टिविटी घट जाएगी. वेयर एज इन केस ऑफ सेमी कंडक्टर क्या होता है, जो फ्री आयंस होते हैं, जो फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें कम होते हैं. व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, तो क्या होता है कि जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो वहां से निकल करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है. तो द कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन द हाउ द नंबर ऑफ, या हाउ मेनी आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही उनकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी. तो सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि हम लोग अगर हीट देने से, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से, उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है. यस और नो? वहीं पर इन केस ऑफ सॉलिड, टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी कंडक्टिविटी घटती है, क्योंकि आपस में वो कोलाइड करने लगते हैं, और आपस के कोलिजन से क्या होता है, तो नेट स्पीड कम हो जाती है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? yes. हाँ. सो राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक.
that is diffusion. It is the intermixing of substance. Yes or no? या ऐसे लिख सकते हैं, the intermixing of substance spontaneously. Why you have switched your camera? Everyone, is there any issue? Intermixing of substance spontaneously of two different matter. Two different types of matter is called diffusion. Clear? So we can write here a point is that note डाल के you can write rate of diffusion will increase if we increase temperature. Yes or no? Yes. Similarly, when you boil water in a container, if you increase the temperature means amount of heat बढ़ाओगे तो temperature बढ़ेगा. तो temperature बढ़ाने से जो water के अंदर जो बुलबुले हैं, what we can say, their particles, उसकी उबाल ज्यादा होती ना, तो इस तरीके से उसके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा. क्लियर? Yes, sir. हाँ. So rate of diffusion will increase with increase in temperature. सर कंप्रेसिबिलिटी से भी तो होगा. Once again, सर कंप्रेसिबिलिटी से भी होगा ना. कंप्रेस मतलब प्रेशर एग्जिट करने पर ना. हाँ सर. हाँ, तो प्रेशर एग्जिट करने पर क्योंकि एरिया कम हो जाएगा ना, तो स्पीड बढ़ जाएगी. ठीक है, with increase in temperature. तो वी कैन इसका रीजन देखिए पॉइंट लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर द पार्टिकल्स हैव more kinetic energy. Okay, it means they will move in a faster rate or more speed. Clear? If you take an example like when you dissolve sugar in water, then what will happen? Anyone? In last class we have also discussed about these kind of things, like sugar, like salt. Where these sugar particles will go? Sir, in the spaces between the water, or in the voids. Sir, in the voids. In the voids, not we can say voids, the spaces in between the voids. हम लोग पता कहाँ बात करते हैं? सॉलिड्स में बात करते हैं. जब आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो वहां पर मालूम चलेगा. ठीक है, जब फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सॉलिड के पार्टिकल्स है, दूसरा ये है और तीसरा ये है. लाइक सिंपल सा एग्जांपल, आपके पास बहुत सारे क्या है, टेनिस के बॉल्स हैं. ठीक है, जब उसको आपस के एक के ऊपर एक रखोगे ना, बीच में आपस के उसमें एक गैप होगा, उनको वाइड्स बोलते हैं. समझ में आ रही है? वो क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज वाइड्स.
तो ये वाइड्स की हम लोग कंसेप्ट सॉलिड में करते हैं। क्लियर? हेलो? Yes, sir. So here what will happen? The sugar molecules will disappear in the spaces in the water molecule. Yes or no? So we can say the sugar particles will dissolve in the water space that is available in the water. Yes or no? But the level of water not arise, as because the solid particle, the solid matter that occupy the space available in the water. Clear? Next example, there is a beam of light in your house. There is a beam of light in your house, or we can say the basically the better example or the best example will be the sunlight. When we see the sunlight, there are the particles which are moving up and down. You have seen? Hello? Yes, sir. Sir, from the light from the headlights of vehicles also. You can see all these kind of particles. Like we have dust particles, you can see there. Clear? When someone uses perfume or ether, what we can say. So अगर किसी जहाँ पर आप हो किसी कोने पर अगर कोई this kind of perfumes are being used, so within short interval of time you can you can understand that someone has used perfume. Like you can say if someone is having smoking, तो उनके जो बर्निंग के जो व्हाट वी कैन से स्मोक आएगी तो वो बहुत कम टाइम में आप तक पहुंच जाएगी. तो मींस गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू सॉलिड्स. क्लियर है? सो वी कैन से एज द हियर इन केस ऑफ परफ्यूम देयर पार्टिकल्स आर वोलेटाइल. वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि द फेज इन द कंटेनर दे आर इन लिक्विड फेज. व्हेन यू कंप्रेस दैट, then what will happen? Those liquid phase converted into vapor phase. So the substance we directly converted into vapor. These substances are known as volatile. Clear? So those volatile substance gets you the smelling of those perfume which when someone is using. Clear? And they diffuse it at a very fast rate as compared to other states of matter like liquid, like solid. Clear है? हाँ. Yes, sir. So in next when we talk about diffusion, then what will we call it at? It is the intermixing of substance spontaneously of two different types of matter that we call as diffusion. Clear है? Example के तौर पे आप इसमें क्या लिखेंगे? Sugar in water. Clear? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट क्या होगा बताओ? चॉक इन व्हाइट बोर्ड. चॉक इन नॉट व्हाइट बोर्ड, इज ब्लैक बोर्ड. सर पर हमारे टीचर ने तो बोला था कि वो एड्सॉर्प्शन होता है. कौन सा? सर चॉक के साथ ब्लैक बोर्ड पे लिखना. लेकिन आपके यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे? डिफ्यूजन. ओके सर. ठीक है सर, तो जो चौक पे अगर आप इंक डालोगे ब्लैक कलर की और उसके नीचे पानी रखोगे तो वो कौन सा मेथड होता है? तो एड्सॉर्प्शन ही होता है ना. एडजॉर्प्शन जब वो सरफेस पे अटैच होती है. हाँ सर, मतलब वो इंक पूरे सारे कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. मैं इंक की बात नहीं कर रहा, मैं चॉक और ब्लैक बोर्ड की बात कर रहा हूँ. नहीं सर, मैं इंक और चौक की बात कर रहा हूँ. वो तो एब्जॉर्प्शन है ना. हाँ सर, वही. एब्जॉर्प्शन. एडजॉर्प्शन होता है, एक होता है एड, एक होता है एब. एब से क्या होता है कि वो पार्टिकल्स अंदर जाते हैं. क्लियर? और एडजॉर्प्शन क्या होता है? एक सरफेस फिनोमेना है जो उसके सरफेस पे होता है. क्लियर? यस सर. हाँ. So we can say we have some examples like of diffusion. We can say solid in liquid होता है, liquid in liquid होता है, gas in liquid होता है, gas in gas होता है, and solid in gases होता है. अगर आपसे सवाल मैं पूछूं कि what are the example of diffusion that is solid in solid? Sorry, first example will be
solid and liquid. The example will be Salt and water. salt and water, sugar and water. Clear? Next we have example that is liquid in liquid. लिक्विड इन लिक्विड डे टू डे लाइफ में ध्यान से Sir, ink in water. Sir, ink in water. ink in water. We can Sir, also say lemonade. milk in water or Sir, lemonade. लेमन जूस विथ क्या बोलते हैं नींबू पानी, लेमन वाटर, हाँ कि ना. इन नेक्स्ट वी हैव गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन एंड वाटर और एनी अदर गैसेस इन वाटर. कोल्ड ड्रिंक, Sprite. Do you know CO2 gases are pumped highly, pressurized highly for the intermixing. In next we have another example, gas in gas. Bromine vapors and Sir, air. Once again, Sir, bromine air. vapors. Bromine vapors and air. not getting your voice. Bromine vapors. Wait. Sir, type में sir. Okay. So gas in gas में we can say we have different gases like nitrogen, like oxygen, like CO2 in the air. So this is also diffusion. In next we have solid in gas, dust particle in air. Dust particle is solid state. Yes or no? That is in the air. Sir, sprays. Bromine vapor. That's fine. So these are the examples of diffusion that are occurring in different parts. Clear है? बाकी इनके बारे में डिटेल से आप लोग इन हायर क्लास समझोगे, क्लास 11th में और अच्छे से आएगा कि क्लास 12th में और अच्छे से आएगा. वेयर यू विल गेट कि सॉलिड इन लिक्विड एंड देन फिर सॉलिड इन गैस. ये 3 हो गया. फिर नेक्स्ट 3 में क्या आएगा? लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस. इन द थर्ड केस you will have gas in solid, gas in liquid, then gas in gases. यहाँ पर आप लोग अलग अलग टाइप्स ऑफ सब्सटेंस के बारे में पढ़ोगे, कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ोगे. ठीक है? हाँ जी. अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि द बॉटल ऑफ सेंट व्हेन ओपन इन द रूम इट्स स्मेल स्प्रेड वेरी फास्ट, एक्सप्लेन व्हाई. एनीवन? Sir, because of डिफ्यूजन diffusion. प्रोसेस फास्ट होता है. क्या होता है? डिफ्यूजन प्रोसेस ऑफ gases are very fast, that's why they will diffuse easily in the air. Clear? When the bottle is opened, their particles, as they are volatile substance, they will come out of the bottle and diffuse in the air very soon, very fastly, and reaches to the each place of the room. That's why this kind of phenomena is occurring. Is it clear to everyone? Yes or no? Yes. Hello? Yes. Yes, sir. So in characteristic of particles of matter, we have we have studied that particles of matter are very small. इतना छोटा कि आप उसको naked eye से देख नहीं सकते. The particles of matter have space in between them. The third point was the particles of matter are constantly moving. Those kind of motion are known as Brownian motion. Yes or no? Yes. Write down the fourth sir. point. Write down the fourth point. Particles my attract point each other. once again. Particles attract each other. हाँ, ये पार्टिकल्स ये मैंने बात किया था क्या? अभी करना है अपन को. सो द पॉइंट्स इन द सीक्वेंस रोमन नंबर पे था या किस पे, सीक्वेंस पे किस पे था? अब तक 3 पॉइंट हो चुका था ना. किस पे लिखा था? देखो रोमन पे या किस पे? रोमन पे था. इस फॉर्मेट पे. Yes. हाँ. सो नेक्स्ट लिखिए द पार्टिकल्स ऑफ मैटर attract each other. और टेस्ट में इससे पहले तक आएगा. ठीक है? या कह सकते हो कि पेपर तो बन चुका है.
इट मे बी पॉसिबल कि कुछ इधर का भी है। वो आंखें बड़े करने की जरूरत नहीं है ना, वो हमें यहाँ से दिखता है। ओके, पेपर बहुत इजी है, सब सब कर सकते हैं। तो सर सब वी यही नो, बोलते हैं। सर सब टीचर यही बोलते हाँ सर। नहीं मैं जो बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे ना, बहुत इजी है। सो बेसिकली वी हैव इन हैं। सर मेरे डिफरेंट अंदर तो डिफरेंट। दिमाग नहीं है इनका, पता नहीं। कोई बात नहीं, इसके बारे में हम लोग क्लास के बाद एंड में बात कर लेंगे, ठीक है ना, दिमाग किसके पास है किसके पास नहीं है। So different states of matter, there are force of interaction, na? Force of interaction, force of attraction. So they are occurring in between the particles of matter, which bind them together. तो सॉलिड में ये फोर्स ज्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है, इसलिए वो लिक्विड है। सॉलिड में ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई इट इज सॉलिड, एंड इन गैसेस इट इज मिनिमम, दैट्स व्हाई इट इज गैसेस। ये सुनो, उसमें ऐसा है ना कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से उसमें क्या होती है, दुश्मनी होती है, कि भाग गया तो मैं से दूर रहे, हाँ कि ना? इज इट क्लियर? Sir, So in this force of attraction between the particles of matter. The 12th student is in the class. Oh, who is that? Sanya, are you? No, sir, I was in the class. In I think regular class you are present? Yes, sir. कौन है वो बताइए? क्या सर? अच्छा, जानवी आप हैं क्या, मतलब जो आपकी क्लास अटेंड जानवी नहीं अभी कर रहे हैं? join की थी। यस कौन सर। है वो? सर मैं। अच्छा, आपकी बायोलॉजी की क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो ना? हाँ सर। वो आप क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग लेक्चर से आपने क्लियर कर लिया उसको? यस सर। कोई दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। if you have doubt you can contact me, okay? यस सर। we have two students ना, जानवी सानवी, तो थोड़ा वो होता है, कंफ्यूजन होता है, ठीक है? तो हो जाएगा धीरे धीरे। force of attraction between the particles of matter, we have different force, clear? Like we have cohesive force, like we have adhesive force, which bind them together, which bind the particles together, सबको बांध के रखता है। लाइक मम्मा एंड पापा, सब बच्चों को एक साथ लेके चलते हैं, यस और नो? यस सर। हेलो, हाँ। सो द फर्स्ट वन इज कोहेसिव। फर्स्ट वन इज कोहेसिव। अच्छा, इन प्रीवियस क्लासेस समवन इज टॉकिंग अबाउट कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, कैन यू एक्सप्लेन सर मैं अगेन? था। हाँ, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन? अब मैंने पूछा तो कैमरा बंद कर लेने नहीं बोला ना? क्या सर? I have asked what do you mean by cohesive force and adhesive force? Can you explain? हाँ सर, कोहेसिव फोर्स मतलब द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम पार्टिकल्स, सेम सब्सटेंस के पार्टिकल्स में होता है, और अधेसिव मतलब दो डिफरेंट पार्टिकल्स में होता है। Means to say here is the term co. Co means क्या होता है ना, कि सेम वाला होता है ना, करिकुलर एक्टिविटीज, को एजुकेशन, को क्लासमेट, मीन्स एक साथ वाले, क्लियर है? अगर वाटर मॉलिक्यूल्स है तो वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, फॉर एग्जांपल दिस इज H2O, क्लियर? दिस इज अनदर H2O मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल पता है ना? बेसिकली एटम, जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मान लो कोई एलिमेंट है, उसके अंदर सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे, वो मिलके क्या बनाएगा? दैट इज द, बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम क्या हो गए एक एलिमेंट के अंदर होगा। एलिमेंट ही इसका एक्चुअल में एग्जिस्टेंस होता है, एटम का एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो बहुत छोटा होता है। एटम इतना छोटा कि आप सपने में भी इसको सोच सर मोल किस लिए यूज करते हैं? तेरे को पता है तो बोल रहा है क्या? क्या सर? आपको मालूम है इसलिए आप बोल रहे हो क्या? ये सब नहीं आएगा सर, ना? मालूम नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, कहाँ यूज करते ये हैं? मोल्स आएगा, मोल्स आएगा,
ये तो मैं आपको मैंने पढ़ाया था मोलर मास के बारे में, क्योंकि इतना छोटा पार्टिकल्स है कि आप इसको समझ समझ आप दूर समझ सोचने के लिए भी गुमान नहीं कर सकते। सो ऐसे पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लोग मेजर करने के लिए हम लोग मोल्स का यूज करते हैं। जैसे 12 अगर 12 पीस है तो डजन की बात करते हैं, 100 है तो सेंचुरी की बात करते हैं, 1000 ग्राम है तो केजी की बात करते हैं, 1000 ml तो लीटर की बात करते हैं। उसी तरीके से एक मेजरमेंट का यूनिट है वो मोल है, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। ये हम लोग अपने रिस्पेक्टिव टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी यहाँ पे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि जहां पर ये मान लो कि हाँ जी, तो आई सेड दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, यस और नो। अगर इसके बीच का जो इंटरेक्शन होगा अट्रैक्शन होगा, दिस इज अ सिमिलर मॉलिक्यूल, क्लियर है। तो दिस काइंड ऑफ इंटरेक्शन, दिस काइंड ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। को का मींस सेम, when the force of attraction is occurring in between the similar same kind of particles, same kind of matter, that will be considered as cohesive force. Is it clear to everyone, yes or no? सर तो फिर एलिमेंट में भी कोहेसिव फोर्स ही होगा। I have said molecule. I have said molecule. सर डाउट, हाँ पूछो। सर कि एलिमेंट में भी फिर कोहेसिव फोर्स होगा ना? वहां पर अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं। जब मेटल्स की बात करते हैं ना, तो एटम्स क्या होता है ना कि आपस में ज्वाइंट होते हैं। IM को बोलते हैं IMF, इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्लियर। यहाँ पर क्या है, दिस इज द काइंड ऑफ फोर्स, द पार्टिकल्स, ये अलग अलग मैटर के जो पार्टिकल्स है, लाइक हम लोग क्या बात की H2O है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक साथ किस बेसिस पे रहेगा कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ फोर्स, तभी तो एक वाटर एक कंटिन्यूअस फ्लो में रहता है, क्लियर है। यहाँ पर हम लोग एक थोड़ा सा एक लार्ज व्यू में बात कर रहे हैं। हम लोग माइक्रोस्कोपिक, कुछ ज्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल में बात नहीं कर रहे, क्लियर। तो जहां पर इस तरीके से मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करे, उसको हम लोग ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, क्लियर है। जहां पर फॉर एग्जांपल ये कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स कहाँ पे यूज होता है, जैसे कि हम लोग प्लांट की बात करें, तो इन द प्लांट्स वी हैव जाइलम एंड वी हैव फ्लोएम, डू यू नो। These are the vascular elements through which conduction and distribution of foods occur. So जिस कैपिलरी ट्यूब के थ्रू पानी goes upside, so अगर इसके पार्टिकल्स में और वाटर के बीच का अट्रैक्शन ना होता तो वाटर कैनॉट मूव अपसाइड, मींस एसेंट ऑफ सेप नहीं हो पाता, जो लिक्विड है जो फ्लो हो रहा था वो नहीं हो पाता। ये इसी के अट्रैक्शन की वजह से होता है। एक तो आपस का अट्रैक्शन है द कोहेसिव फोर्स, एंड अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स एंड द सरफेस। तो सरफेस के साथ हो गया ना, तो ये अलग मॉलिक्यूल, ये अलग कंपोनेंट है, ये अलग कंपोनेंट है, तो दिस इज द काइंड ऑफ एडहेसिव फोर्स। इज इट क्लियर, यस और नो। हेलो, यस सर। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद और थोड़ा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट द डेफिनेशन ऑफ कोहेसिव फोर्स। It is the force of attraction. What happened, Ravi? Nothing sir. If have, you can tell me No sir. without any kind of smile. मैं तेरे को स्माइल के बाद भेज दूंगा, ठीक है। The force of attraction between the particles of matter, clear। of same or different, Same substance. is known as, what we call them, Cohesive. cohesive force, clear।
एग्जाम्पल में लिखिएगा वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। तो कुछ इस तरीके से, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल and this is the water molecule, and this is the kind of bond forms in between them. This is basically hydrogen bonding. कौन सा bonding? हाइड्रोजन bond. क्लियर आकाश? Yes, sir. Should I move to next? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Write on the second point, that is adhesive force. सर एडहेसिव मतलब डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में अट्रैक्शन। Obviously पहले वाला सिमिलर था, डिफरेंट सब्सटेंस मींस जनरली एक तो मॉलिक्यूल होगा, दूसरा क्या होगा, कोई सरफेस होगा। लाइक अगर ग्लास है, आपने उस पर वाटर पानी उस पर गिराया, तो वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, दैट इज द एडहेसिव फोर्स। क्लियर? So it is the force of attraction between two different or two dissimilar molecules of different substance. Is it clear? That will be called as adhesive force. Is it fine? रवि, आप नोट्स बना रहे हो? हाँ सर, वो दूसरा बुक था। Be sure कि I will check notes of everyone. सर देखो सर, कोई दूसरा बुक था। नहीं, कोई बात नहीं, मैं जब चेक करूंगा तब मुझे मालूम चल जाएगा, ठीक है ना? जब मैं चेक करूंगा तो मुझे मालूम चल जाएगा। ओके क्लियर? हाँ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन the particles or molecules of different substance. Clear? Different substances is known as adhesive or cohesive? Adhesive. Adhesive. कुछ एडहेसिव सब्सटेंस भी आते हैं, लाइक ग्लू टाइप का आता है ना, एडहेसिव ग्लू। Yes, सर। हाँ, एडहेसिव फोर्स बोलेंगे इसको। कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। इसमें एग्जांपल लिखिएगा क्या? सर वाटर और ग्लास रोड का। वाटर इन ग्लास, ठीक है? हाँ जी, सर मैं कह रहा था कि वाटर मॉलिक्यूल स्टिक टू द ग्लास रॉड ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। मीन जहां पर डिफरेंट सब्सटेंस रहेगा तो वहां पर क्या बोलेंगे? वाटर एंड ग्लास रोड और एनी ग्लास। क्लियर? स्टिक तो वहां पर भी होगा। हाँ अर्णब, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। अगर किसी अब जब ग्लास से आप पानी से किसी ग्लास को साफ करते हो, सिर्फ ग्लास रोड, दोनों सेम चीजें, अलग अलग चीजें? ग्लास रोड और ग्लास हाँ सेम है, डिफरेंट है? सेम है सर। हाँ, तो क्या होगा, जब आप मान लो किसी ग्लास को क्लीन करते हो तो पानी कुछ देर के लिए चिपका हुआ रहता है। दिस इज ड्यू टू दिस काइंड ऑफ फोर्स, दैट इज एडहेसिव फोर्स। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, जिस सब्सटेंस के अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, दोस काइंड ऑफ सब्सटेंस को ब्रेक करना इजी होगा या मुश्किल होगा? रवि, सर आप रिपीट कर सकते हैं? substance having high intermolecular force of attraction, सर इसे ब्रेक करना मुश्किल होगा। like rod, it is easy for you
No, sir. Iron rod, not glass rod. Sir, it is hard. It is too much hard, na? Yes, It sir. means the intermolecular force of attraction is strongest among these kind of solids. Is it clear? Yes, sir. Akash, आप बताइए. For the in the case of chalk, is it the intermolecular force of attraction is high or low? It is low. पक्का? Yes, sir, because हम अपने हाथ से भी उसे तोड़ सकते हैं, तो वो हाथ से obviously सिर्फ नहीं, less. वो अपने काफी वो इजीली वो अपने 2 उंगली से भी उन्हें आप तोड़ सकते हो, हाँ कि ना? और चुटकियों में उन्हें अर्णव रवि की तरह क्रश भी कर सकते हो, हाँ कि ना? मैं क्यों क्रॉस पे जाऊंगा? सर, हाँ सर. फिर एडहेसिव फोर्स के एग्जांपल में ऑयल और ग्लास भी आ सकता है ना? हाँ, ऑयल और ग्लास भी आ सकता है. ठीक है, हाँ जी. और ऑयल के जो आपस के मॉलिक्यूल्स हैं, दिस इज ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स. हाँ ना? हाँ सर. कोई दिक्कत? नहीं सर. तो ये हो गया आपके पास टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स. कुछ और एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं क्या? अरे बोलो. हेलो. सम मोर एग्जांपल्स. सर पेन का जो इंक है और पेपर उनके बीच में. हाँ, आपने सही बात बोला. जो पेन है, पेन का इंक और जिसके अंदर वो रिफिल के अंदर जो इंक रहता है, तो आपस में जो ये रुका हुआ है ना, दिस इज ड्यू टू द, अगर आप उसके पेन के नीब को निकाल भी दोगे तो ये अटका अगर कुछ देर तक रुका हुआ भी रहता है विदाउट एनी काइंड ऑफ व्हाट आई कैन से, कि अगर फोर्सफुली उसको ना निकाला जाए, तो दिस इज ड्यू टू द क्या? एडहेसिव. क्लियर है? और आपस में जो रहेगा अपने बीच में, दैट इज कोहेसिव. कोई दिक्कत है, हाँ या ना? No, sir. शुड आई मूव टू नेक्स्ट? यस सर. सर, हाँ सर. एडहेसिव फोर्स 3 सब्सटेंसेस में हो सकता है क्या? 3 सब्सटेंसेस में? हाँ सर. हमने बात किया एडहेसिव जहां पर भी 2 भी आएगा. अब 2 के साथ तीसरा भी आएगा तो वो आपस में दूसरे के साथ हम लोग एडहेसिव बात करेंगे. अब तीनों को मिला करके एडहेसिव नहीं बोल सकते ना. ओके सर. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए पार्टिकल, दिस इज बी पार्टिकल एंड दिस इज सी पार्टिकल. अब अगर ये तीनों पार्टिकल्स अलग अलग है, इफ बोथ दीज 3 पार्टिकल्स आर डिफरेंट, मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, इट मींस अगर अट्रैक्शन है तो दिस इज द एडहेसिव फोर्स. यस और नो? इनके बीच होगा, ये एडहेसिव हो गया. अब तुम ये कहना चाहते हो कि सी भी इस तरीके से है, ये इसके साथ एडहेसिव होगा, ये इस तरीके से इसके साथ एडहेसिव होगा. एडहेसिव के लिए चिपकने के लिए 2 चीज चाहिए होती है, पहला और दूसरा, हाँ कि ना? हाँ सर. हाँ रवि. Yes, sir. इज इट रवि कौशिक? What, sir? रवि कौशिक, इट्स योर फुल नेम? Yes, sir. ओके, रवि कौशिक चंद्रगिरी. कोई बात नहीं. शुड आई मूव टू नेक्स्ट? Yes. Generally we know we have 3 states of matter. What are those? Solid, liquid, Solid, liquid, gases. and gas. Sir, and also But- more are there. सर, प्लाज्मा और Sir, बोस plasma, Bose Bose, and and condensate. We have 2 more Condensate. types. Lekin generally we always talk about 3 states of matter: the solid, liquid, and gas. Like LSG, Lucknow supergiants. Yes or no? Yes, sir. Right on the next topic, states of matter. So we have classified matter on the basis of different base. So based on physical state, we have different types. As in initial lecture, we have also read about key physical classification, chemical classification. Yes or no? Yes, अरे sir. हाँ जी. So based on
physical state means which we can see physically, visually, which we can visualize. That is the physical state. Yes, we have generally 3, but only for now we will talk about 5, but later on we will only talk about 3 states of matter. Clear? रवि, देखो बेटा, Yes, sir. हंसने के बजाय थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है ना? मार्क्स आने के बाद सब मालूम चल जाएगा। बात समझ रहे हो क्या? हाँ सर, समझ रहा हूँ। इसलिए ध्यान दो। सो अंडर एक होता है STP, एक होता है NTP. डू यू नो? STP और वी कैन से NTP, दोनों अलग अलग चीज है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लियर है? STP का मतलब एनी वंस अगेन सर मैं कह रहा था कि STP और NTP का मतलब क्या है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताइए। नहीं पता सर। आई डोंट, I सर, also TP don't मतलब know. कुछ टेम्परेचर और प्रेशर से है क्या? Okay, fine. What about S and what about N? सर वही देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बोलो ना बेटा, क्या सर? बताइए। सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऐसा कुछ होगा? किसी ने आपको बताया पीछे से? हाँ नहीं सर। हाँ, सानवी आप बताओ क्या होता है STP NTP? डू यू नो? What about जानवी? Yes, sir. STP NTP क्या होता है? You also don't know. Not an issue. सुरेश अग्रवाल, नहीं सर। काफी टाइम से मैं आपको देख रहा हूँ कि आपकी कुछ हरकतें अच्छी नहीं है। सर मैंने क्या किया? क्लास के बाद आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? अनुश्री आप बताइए, आपको मेरे नहीं पता? Yes, sir. मेरे को इतना तो पता है वो टेम्परेचर और प्रेशर से रिलेटेड। ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ क्लियर टू एवरीवन? यस सर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। दूसरा वाला क्या हो बताओ? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। कितना आसान है ना? आसान, जानते तो सब कुछ हो बट पता नहीं, हाँ कि ना? देखो दोनों जगह प्रेशर तो सेम होती है बट टेम्परेचर 0.15 केल्विन का फर्क होता है। क्लियर है? एक में 273 होता है, एक में 273.15 केल्विन टेम्परेचर होता है। क्लियर है? सो अंडर दिस कंडीशन we have generally 3 but we are going to talk about 5 states of matter. Clear है? अरे बोलो। The first one will be solid state. We will call it as solids. Fine. Solids क्या होता है? Solid is known by their property that it will have definite shape. Yes or no? Harshvardhan, what are you doing? Yes, sir. Tell me. Solid, जैसे मैंने पहले बताया था कि atoms, not atoms, metals are known by their property to donate electron, whereas non-metals are known by their property to gain electrons. Is it clear? हाँ जी. Try to focus on the class. Harshvardhan and Sriyansh. Otherwise, you will have loss. Okay. So solids are known by their property. For example, this is the cuboidal structure in the solid state. Like ये सीमेंट का बना हुआ है, इसका बना हुआ है। Like bricks को मान लो, क्या मान लो? Bricks, ईंट।
जैसे वॉल का होता है ना यूनिट, तो इट विल हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, हाँ कि ना, फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. Whereas in case of liquid, definitely it will have definite volume, definitely, but not fixed shape. क्योंकि जिस जिस कंटेनर में रखोगे आप, मान लो आपने ग्लास में रखा तो ग्लास का शेप ले लिया, आपने बकेट में रखा तो बकेट का शेप ले लिया, आप किसी और कंटेनर प्लेट में रखा तो प्लेट का शेप ले लिया, हाँ कि ना. मान लो आप पानी पीने के लिए गए तो आपका माउथ का शेप ले लेगा. हाँ सानवी, सानवी कथी, मान लो It will पानी take the shape of पानी, the container. हाँ मतलब जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसका शेप को ऑक्यूपाई करेगा. क्लियर है. बट वहीं पे गैस क्या है, बोलते ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं, हमको जैसे रखोगे हम वैसे हैं, आगे ना. हम मुझे द कंटेनर इन विच यू विल कीप मी, आई विल बी एज इट इज. क्लियर है. वो पूरे कंटेनर का एज इट इज फैल जाएगा, एज दे हैव लीस्ट IMF. ओम कागड़े, फाइन, इट इज क्लियर. Yes, sir. ओम कागड़े, योर नेम ओम कागड़े. हाँ जी. They are known by their property सर IMF मतलब क्या? intermolecular force. Oh, okay, sir. IMF means intermolecular force of attraction or repulsion. IMF can be of two types, of attraction or what I said, Repulsion. repulsion. ये आप लोग आगे और पढ़ेंगे फिजिक्स वगैरह में. They are known by their property that they will have fixed shape and fixed volume, fixed shape and fixed volume. क्लियर. अरे बोलो भाई. Yes, sir. एग्जाम्पल. एग्जाम्पल बताओ. आयरन, Sir, steel, chalk, wood, glass, sugar, wood, rock, और बताइए, salt, आइस, salt, etc. क्लियर. लिख लिया हाँ सर. सबने. yes, Should I move to next? सर एक मिनट रुको, Once again, सर एक मिनट रुको. do it fast. The next one is liquid. हाँ कि ना. लिक्विड में it comes जल, as we call जल ही जीवन है, हाँ कि ना. और मछली जल की रानी है, as you have learned all this kind of stories in earlier classes. Yes, yes or no? So basically, in case of liquid, they have
definite. You can also write it as that the liquids are known by their property that it will have definite volume but not definite shape. Here definite means fixed. Yes. Hello. Yes, sir. Yes, sir. They have definite or we can say fixed. Definite volume मीन्स जो उसका वॉल्यूम है वही रहेगा. आप चाहे उसको दबा के रखो, फैला के रखो, कैसे भी रखो, वॉल्यूम अगर 1 लीटर वाटर है तो 1 लीटर ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल उसका आपने इवापोरेशन को रोक के रखा है. क्लियर? सर एक क्वेश्चन पूछूं? आप पूछो. सर अर्थ में हर जगह पे जो एयर की डेंसिटी है मतलब सी लेवल पे वो सेम ही है क्या? प्लेन्स पे सेम होती है, प्लेन्स पे, हिली एरियाज पे अलग होती है. नहीं सर, मैं सी लेवल पूछ रहा हूँ. मतलब सी लेवल तो सबका एक ही होता है ना, तो वहाँ पे डेंसिटी सेम होनी चाहिए. सबका सी लेवल एक ही क्यों होता है? नहीं सर, डिफरेंट डेंसिटी. थर्ड हाफ सी लेवल्स अलग होते हैं. देखो प्रेशर एंड टेम्परेचर वेराई करेगा तो सब कुछ वेराई करेगा ना. सर और हर जगह टेम्परेचर सेम नहीं. अरे देख सिंपल सी बात, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है. मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है. अब वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. फॉर Yes, sir. एग्जांपल अगर आप गैस की बात करोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की वॉल्यूम बढ़ती है. डू यू नो? यस सर. तो ये सेम बात है. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की वॉल्यूम बढ़ेगी, घटाओगे तो घटेगी. प्रेशर अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम कम होगी. और जब वॉल्यूम फर्क पड़ेगा तो डेंसिटी में फर्क पड़ेगा कि हाँ कि ना. क्लियर? यस सर. हाँ, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट fixed Definite shape, shape. or we can say fixed shape. It will be called as liquid. Yes or no? सर बट नो Example? फिक्स्ड शेप. सर आपने बट फिक्स्ड शेप लिखा. अच्छा उसमें नोट डाल लीजिए आप. तुम लोग के चक्कर में बहुत कुछ मिस होता है ना. But no fixed shape. Is it fine? अच्छा एग्जांपल लिख रहा हूँ. केरोसिन. यस. इससे और अच्छा एग्जांपल अल्कोहल. डू यू नो? सर क्रूड ऑयल. जल ही जीवन है. सोने की भाव बिकते हैं, दैट इज पेट्रोल. है बोलो यार. रोजाना मम्मा फोर्सफुली पीने ही बोलती है, दैट इज मिल्क. ना अलग अलग. हाँ नहीं सर, मम्मी फोर्सफुली नहीं बोलती. बचपन में बोलते ना बेटा पी ले वरना कोई ये हो जाएगा वो हो जाएगा. नहीं सर, मैं मम्मी को बोलता था. अच्छा आप बोलते थे. फाइन. मर्क्यूरी वेरी भी आ गुड. सकता है. क्या हो गया? मर्क्यूरी भी आ सकता है इसमें. अच्छा तीसरा क्या है? गैसेस. सर नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो डेफिनेट शेप. वेरी गुड. तुम तो एडवांस निकले यार. छुपा रस्तम निकले. सर तो ये था. सर ये तो टेक्स्ट में दिया था. States of matter that do not have fixed volume, and no fixed shape. Is it clear? Yes. इसका एग्जांपल बताइए अनुश्री. Tell me the example of gases. Yes. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन. और बताओ. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. हीलियम, नाइट्रोजन. 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 सर नोबल गैसेस. आर्गन, सर कार्बन मोनोऑक्साइड. रेडॉन, xenon, एटसेट्रा ऑर्गन. एटसेट्रा. आ गया? हाँ जी. क्लोरीन भी गैस है मालूम हो तो. यस और नो?
सर सर क्लोरीन क्लोरीन गैस है। क्लोरीन क्लोरीन गैस क्लोरीन सबसे होता है। फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन सर क्लोरीन गैस थोड़ी होता है। सर क्लोरीन क्या गैस होता है? नहीं है। क्या है बताओ? सर क्लोरीन तो पाउडर की फॉर्म में रहता है ना, स्विमिंग पूल में डालते हैं। अच्छा, स्विमिंग पूल पे डालते हैं, वेरी गुड। सर वाटर को क्लोरीनेट करने के लिए उसमें भी क्लोरीन वो अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं, अलग अलग फॉर्म, क्लोरीन गैस भी होती है। आपने सुना है HCl वेपराइज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे वेपराइज। सर नैफ्थलीन was been vaporized है। हाँ, देन फिर तो गैस हुई ना। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो। सर जैसे पानी अगर उसे बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो उबल जाता है, मतलब स्टीम बन जाता है।